Hello students, how are you all? Hello, ma'am. Hello, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? What about you? बेटा आज के सेशन में we read मैम आपकी आवाज फर्स्ट फर्स्ट के आ रही है। yes बेटा आज के सेशन में हमें थ्री पार्ट ऑफ वर्ब के बारे में स्टडी करना है। ग्रामर स्टेशन, जैसा कि आप पहले भी ग्रामर स्टेशन पढ़ चुके हैं, ग्रामर जंक्शन में पार्ट ऑफ वर्ब पढ़ चुके हैं ना सभी। बेटा अब्रेल आपको Yes, ma'am. यस मैम। यस बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है थ्री पार्ट ऑफ वर्ब। आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक। आई होप सभी को बुक दिख रही होगी। बेटा प्रिया, आपको मेरी वॉइस जा रही है ना? अब्रल, प्रिया। Yes, ma'am. यस मैम। यस बेटा, तो थ्री पार्ट ऑफ वर्ब आप लोग ग्रामर जंक्शन में इस टॉपिक को ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुके हैं। एंड देखते हैं, रीड दिस पैसेज। Hars was sitting in his favorite chair. He had his feet up on the ottoman. I steaming mug of the coffee is his right hand, a biscuit of his left, and the thoughtful expression of his face, Bojo quite unsurprisingly was string at the half-eaten biscuit, waiting for it to fall from my friend's careless lips. Outside, the sun was almost peeping over the horizon, and first chirping of the day were beginning to be here. Although it would appear to casual observer that Hers had made the money plant growing out on the balcony the subject of the undivided attentions. I know him well enough to realize that he was very far away from the 3 BHK apartment he and I had lived in for the past 3 years. Next, in fact, I also happen to know exactly what, or rather who, he was thinking about the Mitesh, and Mitesh was the mutual friend and also friend's subordinate at work. Her boss had asked him to check upon the work that Mitesh had been doing, not something he wanted to do, as we both knew the Mitesh had been laid back attitude that would not go down well with her boss. So he was trying to come up with an excuse that he could get away with. It was a pickle, no doubt. Personally, I thought he should call up the coffee and pretend to have come down with something. बेटा, in this पैसेज आप लोग देख सकते हैं कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हाईलाइटेड हैं, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। whose word? Abral, whose word are highlighted? Please, beta. Abral. यस मैम। Beta, tell. मैम, infinitive.
बेटा इस पे कौन कौन से वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, कौन कौन से वर्ड्स हाईलाइटेड हैं? तो Ma'am, check up on, come up with, get away with, come down with. यस बेटा, तो दीज वर्ड आर इन 3 पार्ट ऑफ वर्ड। ये वर्ड जो है ये 3 पार्ट्स ऑफ वर्ड में है। हाँ, 3 पार्ट ऑफ वर्ड के ये पार्ट है। अब देखते हैं, look at these words. These are 3 part of word. 3 parts of word or 3 past phrasal verbs are idiomatic expression consisting of a verb and 2 particles. The particles could be an adverb or a preposition. The meaning of these phrases are different from the individual parts. जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि आपने 3 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ा है, 2 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ा है। इन बोथ व्हाट इज डिफरेंट? What is different? 2 part of verb and 3 part of verb. Arun, tell. अरुण, आपको मेरी वॉइस नहीं जा रही है क्या? प्रिया, यू टेल, 2 पार्ट्स ऑफ वर्ब एंड 3 पार्ट्स ऑफ वर्ब में क्या डिफरेंस है? मैम 3 पार्ट्स में मैम एक मीनिंग बेटा what is different 3 part of verb and 2 parts of verb? Ma'am, 3 parts of verb has 1 verb and 2 participle like phrasal verbs. All 3 parts verb are idiomatic in nature, which means that they have a meaning that is different from the meaning of the words in illusion. Yes. बेटा 2 पार्ट्स ऑफ वर्ब में क्या होता था? एक आपका मेन वर्ब होता था एंड मैम इट इज पार्टिकल होता था। पार्टिकल क्या होता था? आपका प्रीपोजिशन साइड में उसके ऐड रहता था। 2 पार्ट्स ऑफ वर्ब की हम बात कर रहे हैं। इन 2 पार्ट्स ऑफ वर्ब एंड विथ ऐड पार्टिकल एज प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं लाइक यस बेटा, कोई एग्जाम्पल विद कम अपॉन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं लुक। मैम लुक अप। यस, लुक अप। तो एंड 3 पार्ट ऑफ वर्ब क्या है? मेन वर्ब विथ पार्टिकल एंड पार्टिकल आपका प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब बोथ हो सकते हैं। ओके, यस मैम। बेटा सभी ने यस मैम। ग्रामर जंक्शन में रीड किया था ना? प्रीपोजिशन भी हो सकता है एंड आपका कह सकते हैं कि एडवर्ब भी हो सकता है ना? यस मैम। यस बेटा, तो दैट मैम हियर आर सम मोर 3 पार्ट ऑफ वर्ड। यहाँ पर कुछ और और अधिक पार्ट ऑफ वर्ड दिए हैं, जैसे कैरी ऑन विथ, कैच अप विथ, come down with, come in for, face upon, feel up to, get along with, and get away with, get up to go ahead with, go along with। देख पा रहे हैं सभी ना? सभी को दिख रहा है?
and Yes, ma'am. Yes, ma'am. look down on, look up to, miss out on, put on with, and आप कह सकते हैं, come out in, many three words, uh, the three part of verb there, है ना? Yes, ma'am. Yes, beta. So this three part of verb has a verb preposition combination. State whether these meaning are correct. अब आपको क्या करना है, इनके मीनिंग को आपको मैच करना है, कौन सी मीनिंग करेक्ट है या इसके साथ वो ऐड होगी। तो कम डाउन विथ, बेटा आपने आप लोगों से लर्न करने के लिए कहा गया था कि आप थ्री पार्ट ऑफ वर्ब जो भी आपके मीनिंग्स हैं, एग्जाम्पल नहीं बट मीनिंग एंड थ्री पार्ट ऑफ वर्ब को लर्न करना था आपको। तो कम डाउन विथ, कम डाउन विथ मीन्स क्या हो सकता है इसमें, डू समथिंग फास्ट इनफ या act on support of something, या use up something, fall sick, feel that you are better than somebody. Ma'am, fell sick. Fall sick, very good. Come down with fall sick. Okay. And Yes, ma'am. Yes, ma'am. keep up with. बेटा अरुण, आपको मेरी वाइफ अगर जा रही हो तो आप अपना वीडियो ऑन करें। अरुण, keep up with, keep up with means Aviral, Ma'am, do something fast if Yes, ma'am. do something fast enough. Do something fast enough means कह सकते हैं किसी चीज को ज्यादा करो। फिर नेक्स्ट है run out of. Aviral, you tell. Aviral, run out of. Ma'am, act in support of something. Run out of. प्रिया आप बोले। ma'am, use up something. Yes, use up something. Run out. Use up something. Okay. And stand up for. Stand up for. Yes. Now stand up for means. Aviral. Act to support of. किसी के प्रति किसी act in support, किसी के सपोर्ट में कुछ करना। And last, look down upon means feel that you are better than somebody. Okay? Yes, ma'am. Ma'am, अब देखिए today's टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है, फिर सेकंड टॉपिक, rewrite the sentences using a three part of word from the box which is opposite in the meaning to underline words. आपको इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स राइट हैं, वो थ्री पार्ट्स ऑफ वर्ब हैं, लुक अप टू, पुट अप विथ, लिव अप टू, कट डाउन ऑन एंड गेट अवे विथ। सभी को दिख रहा है? yes, ma'am. Yes, ma'am. So look up to, put up with, live up to, cut down on and get away with। अब देखिए फर्स्ट को इसमें करना क्या है, आपको सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ने के बाद में जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसके लिए उसकी अपोजिट मीनिंग यूज करनी है। एंड कह सकते हैं आप
कि वो अपोजिट मीनिंग आपके थ्री पार्ट ऑफ वर्ब में। तो यहाँ पर थ्री पार्ट ऑफ वर्ब राइट है एंड यू नीड टू ईट मोर चॉकलेट। आपको अधिक चॉकलेट खाने की जरूरत है। अब इसका अपोजिट क्या होगा कि आपको अधिक चॉकलेट नहीं खाना चाहिए या अधिक चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? यस बेटा, आपको बहुत चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में आप क्या यूज करेंगे? यू नीड टू ईट मोर, इस प्लेस पर आपको यूज करना है। क्या यूज करेंगे आप? मैम गेट अवे विथ। बेटा गेट होता क्या है? इसका पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचना। और हमें से बचना नहीं, हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि मतलब हमें नहीं खाना चाहिए। तो क्या होगा? कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन में कम करना। We need कम करना, रिड्यूस। तो यू नीड टू, तुम्हें जरूरत है रिड्यूस चॉकलेट। चॉकलेट को कम खाना है। ओके यस मैम। अभी समझ पा रहे हैं आप? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है? साहिल इज वेरी, साहिल इज वेरी contemptuous of less valuable. साहिल इज वेरी तिरस्कार पूर्ण, कह सकते हैं contemptuous में तिरस्कार करना फॉर द, किसका? जो जिन्हें कम अधिकार, विशेष अधिकार कम प्राप्त है, कम अधिकार प्राप्त है, उनसे वो क्या करता है? तिरस्कार करता है साहिल। तो ऐसे में क्या यूज करेंगे हम? यस, चल बेटा, चल। यस मैम। क्या यूज करेंगे? मैम पुट अप विथ। वेरी, साहिल जो है वो तिरस्कार करता है। तिरस्कार करता नहीं, साहिल इज वेरी तिरस्कार पूर्ण पीपलों में से एक। तो अब तिरस्कार के लिए क्या यूज करेंगे आप? तिरस्कार जानते हैं क्या है तिरस्कार वर्ड? मैम पुट अप विथ। यस, वंस अगेन अविरल, क्या कह रहे हैं आप? मैम पुट अप विथ। पुट, मैम पुट अप विथ, वी हैव नो चॉइस। यस बेटा, पुट अप विथ। यस, पुट अप विथ। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है? इट इज ट्रू, इज इज इट ट्रू, क्या ये सच है? दैट द thief was captured by you, thief जो है तुम्हारे द्वारा पकड़ लिया गया है। तो नहीं पकड़ लिया गया, कैप्चर। बेटा जो आप कह रहे हैं 1 सेकंड में पुट अप विथ, ओके न, तो अब थर्ड में देखिए कैप्चर। कैप्चर के लिए क्या यूज कर सकते हैं? लुक अप टू या फिर लिव अप टू। लुक अप टू। लुक, मैम गेट अवे विथ। गेट अवे विथ, गेट अवे विथ मीन्स
कह सकते हैं टेक। मैम टेक अ ब्रेक। अब कैप्चर मीन्स पकड़ लेना होता है। क्या जो है तुम्हारे द्वारा पकड़ा गया, तो बेटा ये नहीं होगा। गेट अवे, गेट अवे विथ मी। अब क्या होगा? नहीं पकड़ा गया। क्या चोर जो है आपके द्वारा नहीं पकड़ा गया? यस। मीन्स अब आपको सोचना है, आफ्टर दैट करना है सभी को। ओके? यस मैम। यस मैम। ये आपके लिए होमवर्क है। एंड आई हियर द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बैन। बैन मीन्स प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना किसी चीज पर। तो आई हियर मैंने सुना है, द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू, रोक लगा रही, प्रतिबंध लगा रही किस पर? नो अटेंडेंस फॉर द अनदर सेमेस्टर। दूसरे सेमेस्टर में जिनकी अटेंडेंस कम थी, यूनिवर्सिटी उन पर रोक लगा रही, बैन, प्रतिबंध कर रही। इसके लिए इन्हीं में से आपको चूज करना है, कहीं और नहीं जाना है। समझ पा रहे हैं सभी ना? मैम यस मैम। यस। यस। अब क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, किस चीज का यूज करेंगे? या मैम पुट अप विथ। पुट अप विथ। ओके। मैम यस बेटा, पुट अप विथ। एंड पे देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर जिम फॉर फॉल शॉर्ट ऑफ हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस मीन्स होता है, कह सकते हैं आप, अपेक्षा। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर जिम, जिम के लिए बहुत मुश्किल था। क्या? अपने माता पिता की भावनाओं पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरना। फॉल शॉर्ट मीन्स होता है, कह सकते हैं कि खरा उतरना या कमी पड़ जाना, कुछ भी कह सकते हैं। तो फॉल शॉर्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। अब ये मुश्किल नहीं है कि फॉल शॉर्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। चूज करिएगा क्या होगा। नेक्स्ट, fill in the blank with the appropriate key part of word। यहाँ पर क्या करना है? आपको सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस रीड करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे? यहाँ पर जो 3 पार्ट ऑफ आपको सुटेबल लगे वो आपको फिल करना है। जैसे कैन यू प्लीज द बेबी। अब बेबी मीन्स बच्चा, कैन क्या, यू तुम, प्लीज। अब क्या तुम प्लीज द बेबी, इसके लिए आप क्या करते हैं, क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ बहुत सारे आपने पार्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ वर्ड पढ़े हैं, तो इनमें क्या यूज करेंगे? कैन यू प्लीज, क्या राइट कर सकते हैं? प्रिया यू टेल। कैन यू प्लीज द बेबी। तो कैन यू प्लीज get around of means find the time for something, किसी के लिए समय निकालना। क्या तुम बेबी के लिए समय निकाल सकते हो? ओके। यस मैम। यस बेटा। ऐसे ही फिर देखिए, आई जस्ट कांट स्टैंड पीपल। आई जस्ट कांट stand people. Up, I just can't stand people means अरुण, आपको मेरी वाइफ जा रही है? अरुण, यस अविरल।
बेटा Yes, ma'am. एक्सप्लेन कीजिए, आई जस्ट कांट स्टैंड पीपल मीन्स कांट का यूज हम कहाँ करते हैं? मैम हम मैम पास्ट में। पास्ट में, यस। तो क्या क्या कहें मैम हम बेटा, कांट का यूज मैम पास्ट में करते हैं या प्रेजेंट में करते हैं? कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं, मैम मैम प्रेजेंट में। प्रेजेंट में करते हैं, यस। तो फिर आई जस्ट कांट स्टैंड पीपल। मैम मैम मैं किसी भी आदमी को खड़ा नहीं कर पाया। मैं किसी आदमी को खड़ा नहीं कर पाया। आई जस्ट स्टैंड people who would not dare right. He wants, sorry, he don't dare right. Rights means अधिकार। अब देखिए यहाँ क्या यूज कर सकते हैं आप? मैम स्टैंड अप फॉर। stand up for, stand up for means मैम खड़ी हूँ। रक्षा करना। No, who don't dare right. Yes, right कर सकते हैं आप भी stand. Who don't their rights, जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, मैं उन्हें खड़ा नहीं कर पाया। ओके, यस मैम। यस बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। यस मैम। The people were sure that he wouldn't it this time. इसमें ये आप सेल्फ करेंगे and I see you again sometimes he said, आपको सेल्फ करना है, सोचिएगा, after that कीजिएगा। Oh, I think we were gas. Okay, कर लेंगे सभी? यस मैम। यस मैम। इसको ट्राई करना है। After that, next देखते हैं क्या है? Write a conversation on a topic of your choice. आपको एक कन्वर्सेशन राइट करनी है। कन्वर्सेशन जान रहे हैं ना? यस मैम। यस बेटा। तो अब आपको कन्वर्सेशन राइट करनी है ऑन ए टॉपिक ऑफ योर चॉइस, जो आपकी चॉइस हो, आपका मन करे उस टॉपिक को आपको एक कन्वर्सेशन राइट करना है एंड यूजिंग द लीस्ट 10 ऑफ द 3 पार्ट ऑफ वर्ब यू हैव लर्न। आपने जो लर्न किया है उनमें से आपको 10 3 पार्ट ऑफ वर्ब चूज करना है और कोई कन्वर्सेशन राइट करनी है with your friend, with your parents, with your grandparents, with your brother and sister. अब ये समझ पा रहे हैं आप? यस मैम। Any problem? नो मैम। नो मैम। प्रिया, आपने जो सी पार्ट ऑफ वर्ब ग्रामर जंक्शन में रीड किया है उसी में से टाइम चूज करना है। आफ्टर दैट आपको कन्वर्सेशन राइट करना है। ओके, यस मैम। कर लेंगे सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका ग्रामर जंक्शन हो गया इसमें या नहीं? चल, आई होप मैंने इसे बताया था, बट आप लोगों ने किया या नहीं? प्रिया, अवरल, अरुण, चल, यस मैम। किया है आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। यस बेटा। तो आफ्टर दैट फिर देखते हैं, राइट ए पैसेज यूजिंग दीज 3 पार्ट ऑफ वर्ब, यू मे यूज मोर। अब आपको इनसे एक पैसेज राइट करना है।
आपके कम डाउन विथ, कम अप विथ, बेटा आप जब इनकी मीनिंग्स आपको क्लियर रहेगी तो आपको पैसेज राइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कम डाउन विथ मीन्स कर सकते हैं आप फॉलो सिक, once a time, once upon a time I was come down with uh, या आप कह सकते हैं कालरा, या फिर डेनेस्ट्री, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी, या फीवर, कोल्ड फीवर। समझ पा रहे हैं ना? यस मैम। आफ्टर सम टाइम Yes, ma'am. कम अप विथ मीन्स क्या होता है, अगर क्लियर होगा, कम अप विथ मीन्स थिंक अप मीन्स सोचना, किसी के बारे में सोचना। तो फिर आफ्टर सम डेज आई कम अप विथ अबाउट विथ फॉर स्टडी, या विथ स्टडी, हाउ आई स्टडी, मैं मतलब कैसे स्टडी करूंगा, आई विल स्टडी, है ना? फिर कट डाउन ऑन कर लेंगे सभी, आई होप वेरी इजी। Yes, ma'am. यस मैम। मीनिंग क्लियर कर लेंगे, आफ्टर दैट आप पैसेज राइट करेंगे, कर लेंगे सभी ना? Yes, ma'am. यस बेटा, अब देखते हैं राइटिंग जंक्शन। राइटिंग जंक्शन आपका वर्क है, आज के लिए आपको वर्क कौन कौन से करने हैं। फर्स्ट आपका ये वर्क है, आपको वेरी इजी, बहुत इजी है, एंड आप बुक ए से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसे करना है, मींस ये टॉपिक इजी है। एंड आपका फोर्थ टॉपिक, एंड आप कह सकते हैं ये टॉपिक सेकंड, वेरी इजी। जैसे आप किस स्टोरी इसमें राइट करेंगे, सेम कन्वर्सेशन में राइट करना है, बस इतना ही डिफरेंस। समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो आफ्टर दैट राइटिंग जंक्शन, विच इज योर फेवरेट फेरिटल, आपकी फेवरेट फेरिटल कौन सी है, मीन्स परियों की कहानी। फेरिटल जानते हैं ना, परियों की कहानी। Yes, Yes, ma'am. तो आपने बहुत से परियों की कहानी सुनी होगी, तो आपको कौन सी स्टोरी बेटर लगी, अच्छी लगी, वो आपको राइट करना है। एंड मोस्ट फेरी टेल्स आर टोल्ड बाय द नरेटर्स, बहुत सी परियों की कहानी नरेटर्स द्वारा बताई जाती है। बेटा नरेटर में मैम स्टोरी लिखने वाले, ऑथर। ऑथर, मैम। यस राइटर, ऑथर। तो द आर टोल्ड बाय द नरेटर्स, बहुत से परियों की जो कहानी होती है वो नरेटर द्वारा होती है, हु आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी। वो स्टोरी का पार्ट नहीं होता नरेटर। जब वो परियों की कहानी लिखता है, तो आपने अब तक जितनी भी स्टोरी 7th में 6th में पढ़ी होगी, तो नरेटर सेल्फ अपने बारे में, मोस्टली अपने बारे में राइट करता है ना। जब मैं बचपन में था, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, नरेटर अपने बारे में ही बताता है ना? यस मैम। यस बेटा। Yes, ma'am. चाइल्डहुड की बातें बताने लगता है, या फिर यंग एज की बातें बताता है। बट द फेरी टेल, जो परियों की कहानियां होती हैं, उसमें जो नरेटर्स होते हैं वो आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी, वो कहानी का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि मेन कैरेक्टर तो सारे होते हैं। समझ पा रहे हैं ना सभी? Yes, Yes. ma'am. तो राइट अ फेरी टेल, अब आपको एक परी की कहानी लिखनी है, इन विच कैरेक्टर नरेट द स्टोरी, जिसे नरेट किया गया है, नरेटर ने राइट किया है, बट उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हाउ इज दिस स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वन, आपके ने जो स्टोरी राइट की है वो प्राय और भी स्टोरियों से कैसे डिफरेंट है। बहुत सारी स्टोरीज होती है फेरी टेल की, आपने जो स्टोरी लिखी है तो वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अबाउट हिज थिंकिंग, अबाउट हिज पावर, मैजिकल स्टेट, है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो इस टॉपिक को भी आपको राइट करना है, अंडरस्टूड?
Yes, Yes. ma'am. Yes, beta. Any problem? No, ma'am. ma'am. Okay. And next day, beta, if you have any problem, तो you ask me. आप मुझसे पूछ भी सकते हैं. चल बेटा, you have any problem? No, ma'am. No, ma'am. Okay. तो नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन. ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट डे का है. हम इसे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. बट ये कॉम्प्रिहेंशन किसके बारे में है? डस्क. बेटा आप जानते हैं डस्क क्या है? ओनली मुझे ये बताना है कि डस्क क्या है. व्हाट इज डस्क? डस्क इज अ टाइम ऑफ इवनिंग. ये इवनिंग का टाइम है. Yes, ma'am. आप गोधुल बेला भी कह सकते हैं. गोधुल बेला जान रहे हैं ना? जब शाम होने वाली होती है, सूरज ढल, Yes, ma'am. लाल लाल लालिमा आकाश में छाई रहती है ना? जैसे इवनिंग जो टाइम होती है, इवनिंग का 4 o'clock से हम इवनिंग स्टार्ट कर देते हैं कहना कि अब इवनिंग हो गई है. और जब अंधेरा सा हो जाता है तो हम उसको नाइट. यस बेटा ना, जब अंधेरा हो जाता है तो हम रात बोलने लगते हैं कि इट इज टाइम टू टाइम. नाइट का टाइम है जो नाइट टाइम. ओके. बट जो डस्क है इट इज टाइम टू सन सेट. सन के अस्त होने का समय होता है डस्क. गोधूल बेला. एंड जो डस्क है शाम का समय जब सूरज ढलने वाला हो और आकाश में लालिमा छाई हो. एंड डस्क का अपोजिट है डाउन. DEWN. डाउन मीन्स सुबह जब सूरज निकलने वाला होता है और आकाश में लालिमा वैसे ही छाई होती है जैसे शाम को सूरज डूबते समय होता है. समझ पा रहे हैं? सेम पोजीशन रहती है. शाम को जब सूरज ढलने वाला होता है, शाम होने वाली होती है, तब भी लालिमा छाई रहती है और सूरज डूबने वाला होता है. एंड नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में डाउन टाइम, उस समय भी क्या होता है? सूरज निकलने वाला होता है और आकाश में लालिमा बनी रहती है ना? Yes, ma'am. तो ये डस्क बेटा शाम का समय है. अब अबाउट दिस टॉपिक हम नेक्स्ट रीड करेंगे. ओके. यस बेटा. Yes, ma'am. ये इतना ही बेटा. होमवर्क सभी को सेंड करना है. ग्रुप पर सभी होमवर्क सेंड कीजिएगा. ओके. गुड बाय एवरीवन. Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. बाय बेटा.